Good afternoon again. In today's lecture, I am going to explain about Kirchhoff's law. So we know basically we are having two type of Kirchhoff's law, that is KCL and KVL. Kirchhoff's current law. KCL means Kirchhoff's current law and KVL means Kirchhoff's voltage law. So what is KCL? Kirchhoff's current law. What do you mean by this Kirchhoff's current law? So this current law, yeah, tell me. At the junction of an electric current, total sum of electric current is zero at the junction of circuit. Yeah, very good, very good. So basically KCL means we have to take care of all current, either it is coming or it is going at a particular node or junction. So first of all, we have to know what is node, or this is also called junction. Sir, it's a point of circuit where circuit can split into two parts. Yes, very good. So basically the node and junction means वो एक ऐसा point होगा, at that particular point different branches are there, either current is coming or going. कहीं पर भी current आ भी सकता है और जा भी सकता है. So this type of circuit you may get, and this point is called either node or junction. And these where current either coming or going, these are called branches. These are called branches. तो ये सारी के सारी क्या आपके पास branches हैं, and this is called node or junction. Suppose either current is coming or going. So suppose here you are having I1 current, here you are having I2 current, here you are having I3, I4 and I5 current. So you have to apply Kirchhoff's current law on this particular node. I'm supposing this node is A. So you have to apply KCL at node A. Means we have to know the definition. And what is the definition? That algebraic sum of all current at a particular node or junction should be equal to 0. So original इसका definition क्या है? Algebraic sum of all currents in a particular node or junction. ये नोड या जंक्शन पे सभी का algebraic करंट कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. Should be 0. And what we have to take care? देखिए आपके पास जो चीज आएगा तो आपके पास क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा वो चीज. अगर आपके पास सब पैसे आते हैं तो दैट मींस आपके पास पैसे ऐड होंगे, तो जो भी चीज आपके पास आएगी दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. एंड जो भी चीज आपसे दूर हो जाएगा यानी आपसे जाएगा, अगर किसी ने आपसे पैसे ले लिए तो आपके पास पैसे कम हो जाएंगे. मींस अगर कोई चीज आपके पास आ रही है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और कोई भी चीज अगर आपके पास से जा रहा है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव. सो आपको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा दैट इनकमिंग करंट, इनकमिंग मतलब आना, आपके पास आ रहा है, सो दैट इनकमिंग करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग करंट जो आपसे बाहर जा रहा है दैट इज आउटगोइंग करंट इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, जो आपके पास आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो आपसे दूर जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी एट दिस नोड ए. स्टूडेंट इज इट ऑडिबल ना? Yes. Okay. Yes, sir. Yes, very good. Okay. So देखिए at node A, tell me students, क्या आपके पास आ रहा है A नोड पे और क्या क्या आपसे दूर जा रहा है? तो देखिए I1 आपके पास आ रहा है. Yes, I1 आपके पास आ रहा है, I5 भी आ रहा है, and I2, I3, I4 is going out. That means यहाँ पर इनकमिंग करंट कौन कौन सा हो गया? I1, I5.
So I1 and I5 are incoming current. Okay, and I2, I3 and I4 are outgoing current. ये मालूम चल गया आपको। अब आपको करना क्या है, आपको एल्जेब्रिक सम लेना है। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, सभी क्वांटिटी को उसके साइन के साथ ऐड करना। क्वांटिटी विद देयर डायरेक्शन यू हैव टू ऐड। So you know if I1 and I5 are incoming current, that means I1 and I5 both are positive and I2, I3, I4 are negative. So you have to add. So add क्या क्या करना है आपको, I1, I2, I3, I4 and I5 ये सभी को ऐड करना है और इन सभी का एडिशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बट ध्यान क्या देना है आपको, यू हैव टू टेक केयर कि आपके ये साइन कैसा है। सो यू नो I1 कैसा है, पॉजिटिव। यस, क्यों, क्योंकि ये इनकमिंग करंट है। टेल मी I2 आउटगोइंग करंट, सो इट इज नेगेटिव। I3 आउटगोइंग, सो इट इज नेगेटिव। I4 आउटगोइंग, इट इज नेगेटिव। टेल मी I5, इट इज पॉजिटिव। क्यों, I5 हमारा कैसा है, इनकमिंग है, सो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज योर KCL equation. This is called KCL equation. Okay, this is called KCL equation. इसमें किसी को डाउट है क्या स्टूडेंट्स? No, sir. No, sir. No. Yes, very good. So No. yes, very good. So हमने बेसिकली क्या किया कि हमने देखा कि algebraic sum of all current at a particular junction or node should be equal to 0. तो हमने देखा कि A नोड पे टोटल करंट 0 होना चाहिए, पर उसका algebraic sum का मतलब होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि उसका वैल्यू कितना है और वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, यू हैव टू टेक केयर। सो वो सभी को आपको ऐड करना है। सो हाउ यू विल गेट दैट करंट इज पॉजिटिव और नेगेटिव? सो एट अ पर्टिकुलर नोड इफ करंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, यानी आपके पास आ रहा है, यानी नोड के पास आ रहा है, दैट मींस दैट विल बी पॉजिटिव। And if it is going outside from that particular node, these values are negative. So you have to add all the quantity with their sign. So you know that I1 and I5 are positive and I2, I3, I4 are negative. This is the one way जिससे आपको मालूम चल सकता है। And इसका second definition भी है। So what is the second definition? That KCL called that incoming current is always equal to outgoing current. दूसरा डिफिनेशन क्या है कि किसी नोड या जंक्शन पे, मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है, इन अ पर्टिकुलर नोड और जंक्शन इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ये सेकंड डिफिनेशन है कि किसी भी नोड पे अगर आपको चेक करना है तो जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट बाहर जाना चाहिए। सो टेल मी स्टूडेंट्स, what are the incoming currents at this particular node? That is I1 and I5. very good. So I1 plus I5 should be equal to outgoing current. So in this case, outgoing current is I2, I3 and I4. So this is your KCL equation. So in both the cases, your KCL equation should be same. So आप इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। Whenever you will simplify this equation, so you will get that I1 plus I5 should be equal to I2 plus I3 plus I4. So you can tally with equation number 1 and equation number 2. In both the cases, you got that I1 plus I5 equal to I2 plus I3 plus I4. So this is your KCL, that is called Kirchhoff's current law. Dear students, I am hoping you all got this concept. Yes, sir. Okay, so if you want to note it down, please note it down. Otherwise, I am erasing this. You can take a screenshot also for future reference. Okay. So जो स्टेटमेंट है इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ थ्योरेटिकल वे में। सो लुक
We are having two law, Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law. If we are talking about Kirchhoff's current law, so suppose here I am having this particular circuit. So इसमें मुझे बताइए स्टूडेंट्स, फटाफट बताइए देख के Kirchhoff's current law में क्या आएगा इक्वेशन? Tell me, कौन बताएगा? I1 plus I4 is equal to I1 plus I4 minus I2. हाँ, इसमें साइन बताइए। देखिए I1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। I2 क्या होगा? नेगेटिव होगा, Negative. I3 क्या होगा? नेगेटिव होगा, Negative. I4 पॉजिटिव, I5 नेगेटिव। सो आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया है, किसी को डाउट नहीं है? No. यस। अगर डायरेक्ट देखिए, अगर डायरेक्ट लिखना होगा इक्वेशन तो हमें मालूम है ये इनकमिंग है और ये आपका इनकमिंग है, तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो आई होप किसी को भी डाउट नहीं होगा। ओके, लुक, सो स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट एज फॉलोज, इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड नोड और जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। तो स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, नो प्रॉब्लम। सेकेंड पॉइंट क्या है? It simplify means that the total current leaving at a junction is equal to the total current entering at the junction. जो मैंने सेकेंड कॉन्सेप्ट बताया ये वाला कि इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? दैट इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू द आउटगोइंग। Kirchhoff's current law is also called point law. Point law क्यों बोला जाता है? बिकॉज आपको मालूम है ये किसी एक पॉइंट पे अप्लाई किया जाता है। सपोज ये ए पॉइंट है, सो वी हैव टू अप्लाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉइंट लॉ और नोड लॉ और जंक्शन लॉ, किसी भी नाम से इसको बुलाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, साइन कन्वर्जन की अगर बात करते हैं तो इनकमिंग करंट हमेशा पॉजिटिव होगा एंड आउटगोइंग करंट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। Negative. यस, वेरी गुड। नाउ अप्लाई केसीएल लॉ, जैसे आपने अप्लाई करके अभी आपने बताया तो क्या हुआ? I1 प्लस I4 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I5, तो आपको क्या मिल जाएगा? दैट I1 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I। Got it, dear students? I hope this point is clear to you. Yes, sir. Yes. Now I am moving for. Yes, sir. Yes. I am moving for second law, that is the Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law. What is Kirchhoff's voltage law? So सबसे पहले आपका स्टेटमेंट आना चाहिए। स्टेटमेंट क्या होता है इसका? The algebraic sum of all voltage source and voltage drop should be equal to 0 in a closed path. In a closed path. What do you mean by this? The algebraic sum of all voltage, जैसे हमने अभी केसीएल में देखा कि करंट का algebraic sum किसी जंक्शन पे या नोड पे 0 होना चाहिए, likewise the algebraic sum of all voltage source and voltage drop should be equal to 0 in a closed path. अब closed path वर्ड क्यों यूज किया गया? Because if you don't have a closed path, current cannot be flow. ये मालूम है सभी को कि अगर क्लोज पाथ नहीं होगा यानी ओपन होगा, तो हमने देखा था कि इन केस ऑफ ओपन रेजिस्टेंस हमेशा क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। अगर ओपन सर्किट बोला हुआ है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। एंड आई इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। इसका वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो आई क्या हो जाएगा? 0। दैट मींस करंट कैन नॉट बी फ्लो इफ सर्किट इज ओपन सर्किट। दैट्स व्हाई हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? If we want to apply KVL equation, always our path should be closed. एक closed path में ही हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। क्या क्या कंसीडर करेंगे? We have to take care about वोल्टेज सोर्स, जितने भी सोर्सेस लगे होंगे और जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होंगे। सो इन दोनों का क्या मतलब है? What is the voltage source and what is the voltage drop? Always if we are talking about voltage source, that is also called EMF.
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जितने भी सोर्सेज होंगे उसको रिप्रेजेंट तो हम V से ही करेंगे और वोल्टेज ड्रॉप को भी V से रिप्रेजेंट करेंगे, बट ऑलवेज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सोर्सेज, तो जो सोर्सेज का वोल्टेज होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट जो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, वट एवर द वोल्टेज यू आर गेटिंग अक्रॉस रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे और उनके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। व्हाई इट इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप? कैन यू टेल मी स्टूडेंट्स? वोल्टेज ड्रॉप क्यों कहा जाएगा उसे? जिससे रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कम हो जाता है। यस, कम क्या हो जाता है? बेसिकली क्या होगा कि जो भी सोर्स आप अप्लाई करेंगे सपोज 12 वोल्ट का, सो अगर रेजिस्टेंस आ गया तो 12 वोल्ट नहीं बचेगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि उस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वहां पर पावर लॉस हो जाएगा। आई स्क्वायर ऑल लॉस इज देयर, उसकी वजह से वोल्टेज में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। सो हमें क्या करना है कि सभी वोल्टेज और जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं सभी को ऐड करना है पूरे क्लोज पाथ में और उसको जीरो पुट कर देना है। दैट इज अवर केवीएल। व्हाट इज डियर स्टूडेंट्स? हमें क्या करना है? वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप सभी को ऐड करके जीरो कर देना है एक क्लोज पाथ में। दैट इज कॉल्ड केवीएल। इज इट ऑडिबल स्टूडेंट्स? Yes, sir. Good. Okay, so I'm erasing this and I'm showing the statement, exact statement. Look, it is statement as follows: the algebraic sum of the product of current and resistance in each of the conductor in any closed path or mesh in any network plus an algebraic sum of EMF. तो देखिए एक थोड़ा सा जंबल स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, और हमें क्या देखना है कि algebraic sum स्टेटमेंट में क्या याद रखना है? The algebraic sum of all EMF and voltage drop, and voltage drop should be equal to 0 in a closed path. एक क्लोज पाथ में EMF और वोल्टेज ड्रॉप का एडिशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब इन्होंने देखिए वोल्टेज ड्रॉप को लिखा है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। किस फॉर्म में लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? I into R, and I into R itself voltage. So ये जो वोल्टेज होगा that is called voltage drop. That is called voltage drop. So EMF और वोल्टेज ड्रॉप का जो एडिशन है वो एक क्लोज पाथ में वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दैट इज अवर स्टेटमेंट। ओके, सो आई थिंक ये सिंपल हो जाएगा याद करना। algebraic sum, okay, algebraic sum of all voltage source, आप all voltage source लिख सकते हैं, EMF लिख सकते हैं, voltage source which is called EMF and voltage drop। voltage drop आप ऐसा लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस should be equal to 0 in a closed path। Got it dear students? ये पॉइंट क्लियर है आपका? Yes, sir. So you can modify your equation in this form, that algebraic sum of all voltage source, that is called EMF, and voltage drop, that is called product of current and resistance, should be equal to 0 in a closed. Okay. Now, second point. In other words, this is summation of IR. IR means voltage drop, and summation of EMF should be equal to 0. So इसको क्या बोलेंगे? voltage drop. नेक्स्ट, साइन कन्वर्जन की अगर बात करते हैं, सो साइन कन्वर्जन कैसे होगा? देखिए मैं अपना पर्सनल तरीके से आपको बता रहा हूँ, व्हाट एवर दे आर शोइंग, डोंट वरी। अब आप सर्किट देखिए। ओके, पहला सर्किट देखिए, फर्स्ट वन। ओके, सो रादर देन शोइंग दिस आई विल मेक माय ओन। ओके, लिसन स्टूडेंट्स, मैं अपना खुद का सर्किट बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिएगा।
पहले एक सिंगल सर्किट करते हैं once. जो लाया सपोज दिस इज अ सर्किट, ये आपके पास सर्किट है और आपको केवीएल अप्लाई करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या देखना है कि करंट का डायरेक्शन क्या हो। सो यू कैन एज्यूम द डायरेक्शन, आप अपने आप एज्यूम कर सकते हैं, बट ऑलवेज यू हैव टू टेक केयर व्हेनेवर यू आर एज्यूमिंग योर करंट डायरेक्शन, आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या ध्यान देंगे, इफ यू आर हैविंग सिंगल सोर्स, यानी एक ही वोल्टेज है, दो होते तो हमें देखना पड़ता किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्या बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी। पर इस सर्किट की अगर हम बात करते हैं, सो वी आर हैविंग अ सिंगल वोल्टेज सोर्स। If we are having a voltage source, so current is always flow from positive to negative. क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, current is always flow from positive terminal to negative terminal. ये पॉइंट आप ध्यान देंगे कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। अगर यहां पर वोल्टेज सोर्स है, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस डायरेक्शन पे फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ये है, ये पॉजिटिव से निकलेगा और एंड कहां से होगा, इंटर कहां से करेगा, निगेटिव टर्मिनल से एंटर करेगा। अब देखिए ये वोल्टेज सोर्स कहां से जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है करंट, सो दिस करंट डायरेक्शन इज दिस एंड इट इज फ्लोइंग एंड एंटरिंग विद नेगेटिव टर्मिनल। सो हमेशा आपको ध्यान देना है कि करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव पे जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, जो भी सोर्स होगा अगर पॉजिटिव दिख रहा है तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से ऊपर की तरफ या जहां भी होगा पॉजिटिव की तरफ से निकाल देंगे आप। ओके, सेकेंड पॉइंट आपको क्या देखना है कि अगर करंट, आपने सपोज कर लिया ये करंट आई है और आपने देखा कि यहाँ पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ये होगा, ये आपने फिक्स कर दिया। नाउ इफ करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, देखिए अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ऐसे फ्लो होगा ना, करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा, इस डायरेक्शन पे जाएगा, फिर R1 पे जाएगा, फिर R2 पे जाएगा और ये कहां से एंटर कर जाएगा, निगेटिव टर्मिनल से वापस एंटर कर जाएगा। सो ये क्लोज पाथ हो गया। देखिए if you are having closed path, then only you can apply KVL equation. तो ये क्लोज पाथ हो गया, अब आप KVL इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, बिफोर अप्लाइंग KVL you have to know the value of current in each and every resistance. KVL अप्लाई करने से पहले आपको सभी रेजिस्टेंसेस में करंट का वैल्यू मालूम होना चाहिए। सो आपने देखा that in this R1 the same current I is flowing and in this R2 the same current I is flowing, क्योंकि दूसरा सर्किट कहीं भी नहीं है। If you are having a single circuit, that means the same current I will flow through this R1 as well as this R2. ओके, अब क्या है कि करंट का हमें मालूम चल गया कि I फ्लो होने वाला है, बट डायरेक्शन भी मालूम चल गया कि ये R1 में कैसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। सो ऑलवेज आपने देखा कि करंट अगर इस डायरेक्शन पे जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट मींस करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स की नहीं हुआ? मींस इसका ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं डियर स्टूडेंट्स? यस। बिकॉज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमें मालूम चल गया, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये कहां जाएगा, इसी डायरेक्शन पे जाएगा। दैट मींस इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर दिस रेजिस्टेंस R1, दैट मींस this terminal will be positive and this terminal will be negative. Why? Because current is always flow from positive terminal to negative terminal. Dear students, okay, now I'm talking about R2.
So in case of R2, we know current is going downwards. That means current is going from top to bottom. ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है. And we know that current is always from positive to negative terminal. That means in case of R2, this terminal will be positive and this terminal will be negative. Is it clear to you, students? Yes, sir. Direction मालूम चल गया. Okay. Once you will get the value of current in each and every resistances, and it is a closed path, so you can apply KVL equation. सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है. Whenever you apply the KVL equation, always remember one thing. It is a tip note to you for everyone. ये बहुत अच्छा concept है. You will get a different concept in each and every book. Students, I am telling you again and again, whatever I am teaching over there for this particular KVL, just follow the same law or same concept. I am telling you, don't go for other textbooks. Otherwise, you will confuse. अगर दूसरा बुक फॉलो करके अगर कंफ्यूज होते हैं तो इट्स अप टू यू. I cannot help you. So whatever I am teaching, I am not telling for entire BEE. I am telling for this KVL equations. Once you will get the KVL equations, most of the things will become easy to you. ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए. So whatever I am telling you over there for this KVL, you have to follow as it is. Don't change anything. Look, ये पॉइंट मालूम चल गया. सभी का साइन मालूम चल गया. सभी रेजिस्टेंस पे करंट भी मालूम चल गया. Once you will get these all things, you can apply the KVL equations. So for KVL equations, start with any of the point. किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करना है. You have to go across all the circuit and you have to come back on that particular point. Means जिस भी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, सपोज इस पॉइंट से स्टार्ट किया, आपको पूरा एंटायर सर्किट में जो भी एलिमेंट्स मिलेगा सभी एलिमेंट्स को कंसीडर करना है और वापस उसी पॉइंट पे आना है. क्यों? तो हमें क्लोज पाथ देखना है. सो वी हैव टू टेक अ क्लोज पाथ. अगर एक क्लोज पाथ दिखा तो इस क्लोज पाथ में, पूरे एंटायर क्लोज पाथ में क्या क्या एलिमेंट्स लगा हुआ है, सभी का हमें वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करना. So okay, I am starting with this point, students, and I am going like clockwise direction. It's up to you. आप किसी भी डायरेक्शन पे जा सकते हैं. Answer will not be changed. But what I am telling, always follow clockwise. Okay? आप फॉलो करके देखिएगा, कोई भी आंसर में चेंज नहीं आएगा. But here I am following only a clockwise direction. So देखिए, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर and I am following clockwise. You have to take later sign. Later sign means जो भी किसी एलिमेंट में बाद में साइन मिलेगा, that sign you have to take. Now if I am talking about this voltage and I am going from this point to this point, so tell me which sign I will get, negative or positive? Students, is it audible? What, sir? Please again, sir. Is it audible ना? Yes. Look, अगर हम इस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, for this particular voltage, बाद में साइन कौन सा मिल रहा है? Positive. Yes, positive. Positive. Yes, very good. So we have to take care later sign. यानी किसी भी एलिमेंट में बाद में कौन सा साइन मिल रहा है, सिर्फ हमें वही देखना है. सो बाद में हम अगर हम इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सो बाद में साइन प्लस मिल रहा है, सो वी विल टेक अ प्लस. एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज? दैट इज V. सो आई विल पुट V. नाउ सेकंड एलिमेंट क्या मिल रहा है? R1. बट बाद वाला साइन क्या है? Negative. Negative. Very good. So negative. What we have to write over there? Voltage या voltage IR. drop? Yes, voltage I या into voltage. R1. Yeah, very good. I will Voltage. Yes, very good. Voltage या voltage drop.
सो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज तो नहीं मिल सकता, बट क्या मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। एंड वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, दैट इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, दैट इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट। तो यहां पर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, R1, एंड करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। दैट मींस वी हैव टू पुट I into R1। Got it, dear students? Yes, we will reach to R2। अब R2 का बाद वाला साइन क्या है, नेगेटिव। Negative. यस, करंट कितना है, I, रेजिस्टेंस कितना है, R2। I2. सो क्या होगा, देखिए वोल्टेज इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, और सभी का एडिशन क्या होना चाहिए, 0. जीरो होना चाहिए। यही तो Zero. स्टेटमेंट था, दैट algebraic sum of all voltage and voltage drop should be equal to 0 in a closed loop path। सो क्लोज पाथ में हमने देखा कि ये वोल्टेज और इन वोल्टेज ड्रॉप का एडिशन किया और उसको क्या कर दिया, 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन सॉल्व दैट P equal to I R1 plus I R2। Can I get this? Yes, I can. Yes, sir. Yes. So I can take I common. So I will get R1 plus R2. So from this particular equation, I can get I equal to V upon R1 plus R2. Got it, dear students? Yes, sir. Okay, yes. For example, if I put voltage equal to 6 volt, if I put R1 equal to 2 ohm, if R2 equal to 4 ohm, so these all values I put on this particular equation. So I will get I equal to 6 upon 2 plus 4. So I equal to 1 ampere. So this is called KVL, Kirchhoff's voltage law. Got it, dear students? Yes, sir. किसी को भी डाउट है, सो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। एज इट इज आपको फॉलो करना है, करंट का डायरेक्शन सपोज करना पड़ता है। अगर एक ही वोल्टेज सोर्स है तो सपोज करना आसान है, वो पॉजिटिव से ही जाएगा। अगर कोई भी रेजिस्टेंस है, तो अगर रेजिस्टेंस पे करंट फ्लो करना है, सो दैट इज फिक्स, दैट फर्स्ट टर्मिनल पॉजिटिव होगा और सेकंड नेगेटिव होगा, then only current will pass, because current is always flow from positive terminal to negative terminal. Sir, Then mesh. you have to apply. Yes, Mesh. I will explain. अभी मैंने mesh explain नहीं किया ना डियर, मैंने mesh word यूज किया क्या, नहीं किया ना। 1 by 1 चलने दो ना यार। mesh सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्मॉलेस्ट लूप होता है। लूप क्या होता है, क्लोज पाथ होता है। उस क्लोज पाथ का जो सबसे छोटा क्लोज पाथ होगा, दैट इज कॉल्ड मेश। पर अभी आप क्यों डिस्कस कर रहे हो, whenever I will explain that particular mesh analysis and nodal analysis, I will explain each and everything. Okay, so आप कंफ्यूज मत करिए दूसरे स्टूडेंट्स को। whatever I am teaching, if you have any doubt regarding this, you can ask. अब आगे का टॉपिक अभी पूछेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, why I will explain here only. So जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें कोई डाउट हो तो बोलिएगा। आई एम नॉट यूज्ड अ मेश वर्ड, ओके, आई एम यूजिंग क्लोज पाथ ओनली। ओके, सो you have to take care whenever you will apply the KVL equations, you should have a closed path. अगर क्लोज पाथ होगा तभी KVL अप्लाई करना। ओके, डाउट है किसी को KVL में? No, sir. Yes, so whatever this, I'm removing this. Now this is exercise, आपको फाइंड करना है। आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन एज इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैनी कॉन्सेप्ट्स आर देयर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इस पे, वो हम देखेंगे। हमें क्या फाइंड करना, देखिए, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस VAB फॉर गिवन नेटवर्क। अब VAB कैसे मिलेगा, here you are having A terminal, here you are having B terminal, so इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। so इसको, इसका वोल्टेज सपोज कर सकते हैं VA और इसका वोल्टेज सपोज कर सकते हैं V। इन दोनों के वोल्टेज में क्या डिफरेंस होगा, ये हमें फाइंड करना है।
सो देखिए लॉजिकली देखिए डिफरेंस कितना होगा, इनके बीच में जो भी वोल्टेज है वही तो डिफरेंस होगा ना। अगर आई एम मूविंग, इफ आई एम मूविंग फ्रॉम दिस ए टर्मिनल, सॉरी वन सेकेंड, yes, if I am moving from this A to this point, then this point, then this point. अब A से D पहुंचने के लिए कैसे जाएंगे, like डायरेक्ट तो नहीं पहुंच जाएंगे, so we will go like this, this and this. अब इनके बीच across this A to B जो भी वोल्टेज है, that is the difference voltage in between of A and B. ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं डियर स्टूडेंट्स, कि ए और बी के बीच का जो हमें डिफरेंस फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में जो वोल्टेज लगा होगा वही तो डिफरेंस होगा। सबको देखो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच में क्या क्या लगा हुआ है वही तो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। इफ आई एम आस्किंग द डिफरेंस बिटवीन VA and VB, that means what are the voltages connected in between of these two elements, that is the difference ना। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं सब? ये Yes, sir. ये 2 है, ये 5 है। I'm asking what is the difference Yes. between these 2 points A and B? So 3, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा ना। 3. What is dear students? That I'm going to ask, ऐसा भी हो सकता है that 5 और 2 हो सकता है, तब भी आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। ये फिक्स नहीं है ना कि ये स्मॉल होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ये कोई डिफरेंस नहीं है। मींस अगर किसी भी 2 points, if you have a 2 points A and B and you want to find the difference in between of A and B, so हमें क्या फाइंड करना है कि what are the content is connected in between of these two elements, that is the difference। इन दो के बीच में कितना कनेक्टेड है वही तो डिफरेंस है ना आपका। सो ये डिफरेंस हमें फाइंड करना है। ओके ओके ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है कि A और B के बीच में वट एवर द वोल्टेज इज कनेक्टेड, सो ये हमें वोल्टेज फाइंड करना है। ओके, वेट अ सेकंड, only 78 students are joined. Okay, dear students, I am posting a link for attendance in your chat box. Please mark your attendance. Is it audible now, dear students? Yes, sir. Okay, so I send a link. Yeah, I send a link. Please mark your attendance. Mark your attendance first. Okay, now listen this carefully. कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसमें हमें देखने हैं। हमें क्या फाइंड करना है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। अगर हम तीनों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड कर लें और तीनों को ऐड कर दें, if we find voltage drop across individual all three elements and if we add all the drops, we will get the difference. Got it, dear students? Okay, is it audible now? Yes, sir. Okay, so how we will do this? कैसे हम लोग ऐसा करेंगे देखेंगे। So अगर हमें इस पे ड्रॉप फाइंड करना है, if you want to find the drop across this 2 ohm resistance, that means you have to know the value of current which is flowing through this 2 ohm resistance. इस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें मालूम होना चाहिए। The same thing, whatever the current is flowing through this 5 ohm resistance, that also we have to know. And third thing, whatever the current is flowing through this 10 ohm resistance, that also we have to know. क्या क्या मालूम होना चाहिए कि 2 ohm resistance में कितना करंट फ्लो होगा,
5 ओम रेजिस्टेंस पे कितना करंट फ्लो होगा एंड 10 ओम रेजिस्टेंस पे कितना करंट फ्लो होगा, दैट वी हैव टू नो। तो देखो वन बाय वन आई एम गिविंग द कॉन्सेप्ट। फर्स्ट केस, आई वांट टू फाइंड द करंट थ्रू दिस 2 ओम रेजिस्टेंस। एनीवन कैन टेल मी, किसी को मालूम है क्या होगा करंट? 5/2 is equal to 2.5 ampere. Yeah, very good, very good. Who is this? I want to know the name. Who is this? कौन है, किसने बताया? निरंग दहे। डिवीजन सी और डी? C 47. Yeah, okay, very good, very good. Very good. Okay, so yes, answer is 2.5 ampere, very good. So how we will get, listen, what the students are doing basically, suppose this is a closed path, ये क्लोज पाथ है, तो सपोज इस क्लोज पाथ में आपको केवीएल अप्लाई करना है। क्यों केवीएल अप्लाई करना है? बिकॉज इस रेजिस्टेंस पे करंट फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग दैट, आई एम टेलिंग दैट दे आर अप्लाइंग लाइक दिस, दे आर सपोजिंग दैट करंट इज फ्लोइंग आई, ये सपोज करते हैं कि करंट यहां पर आई फ्लो हो रहा है, ओके ओके, आई फ्लो रहा है, फिर क्या करते हैं इसमें केवीएल अप्लाई कर देते हैं। सो कैन यू टेल मी हाउ दे आर अप्लाइंग? सो दे विल अप्लाई लाइक, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड व्हाट दे आर डूइंग दैट 5 - 3i - 2i = 0। इस क्लोज पाथ में अगर देखेंगे, सो दे आर डूइंग लाइक दिस एंड दे आर फाइंडिंग दैट i = 1 ampere, but this is wrong, this is wrong. Why this is wrong, student? Because here you are having 3 ohm resistance, but here you are having short circuit resistance. देखिए वायर है ना, वायर का मतलब मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? Here you are having this wire, and what do you mean by wire? That you are having zero resistance, means यहाँ पर zero resistance, and you know the concept that current will flow from minimum resistance. जहां पर भी मिनिमम रेजिस्टेंस होगा, कम रेजिस्टेंस होगा, वहां से ज्यादा करंट फ्लो होगा। ज्यादा मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों में रेजिस्टेंस का वैल्यू होता, यहां भी कुछ रेजिस्टेंस होता और यहां पर रेजिस्टेंस होता, सपोज यहां पर 1 ओम का रेजिस्टेंस होता, सो एज कंपेयर टू 3 ओम 1 ओम पे ज्यादा करंट फ्लो होता। बट इस केस में क्या है, वी आर हैविंग 2 रेजिस्टेंसेस व्हिच आर कनेक्टिंग इन पैरेलल, बट एक का रेजिस्टेंस क्या है, 0 है, और एक का 3 ओम। सो व्हाटएवर द करंट इज देयर, एंटायर करंट यानी पूरा का पूरा करंट दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस से पास होगा, और हियर यू विल गेट 0 करंट। इस 3 ओम में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। Whatever the current you are having, entire current will flow from this 0 ohm resistance. Got it, dear students? पूरा करंट कहां से फ्लो होगा? इस शॉर्ट सर्किट से फ्लो होगा। मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, that if you are having zero resistance, that means infinite current. तो इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, जितना भी सर्किट में करंट है, पूरा का पूरा करंट उस शॉर्ट सर्किट में से फ्लो हो जाएगा। देन ये जो करंट है वो कहां से पास हो जाएगा, ये 2 ओम में से पास होगा, और फिर कहां चला जाएगा, इस नेगेटिव में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम अब केवीएल अप्लाई करेंगे, सो वी नो कि इसमें से तो कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। सो व्हाट विल बी द केवीएल इक्वेशन, टेल मी स्टूडेंट्स? यू विल गेट 5 माइनस, यहां पर बाद वाला साइन क्या है, माइनस का है, 2 करंट कितना है, I, क्लोज पाथ इक्वल टू 0, सो I इक्वल टू 5/2, that is called 2.5 ampere. Tell me students, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सभी को क्लियर है ना? If you have any doubt, it's for everyone. ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे हम बिल्डअप करेंगे, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला के बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। सो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखिए, फिर हम लोग इसको एक अच्छे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप अभी पूछ सकते हैं मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सेकेंड पॉइंट अब हम देखते हैं कि इस 5 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, टेल मी, केवीएल इक्वेशन अप्लाई करने की जरूरत है या नहीं? वहां पे 2 एम्पियर पहले से ही है। यस, वेरी गुड, बिकॉज करंट का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है ना।
and whatever current is given, that current will flow through this 5 ohm resistance. ये सेम 2 ohm का करंट है, वो भी इसी से पास होगा और इससे भी पास होगा, यानी यहाँ पर KVL अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। अगर इस 2 एम्पियर की जगह में वोल्टेज सोर्स गिवन होता, अगर यहाँ पर कोई वोल्टेज सोर्स होता, so you have to apply the KVL equations and you have to find the value of current. But in this case, current is already given in the circuit, और जो करंट है यहाँ पर करंट आई था वही तो फ्लो हुआ ना सभी जगह। यहाँ पर आई करंट मैंने सपोज किया, वही आई करंट यहाँ पर भी फ्लो हुआ, और यहाँ पर आई का वैल्यू गिवन है 2 एम्पियर, तो ये 2 एम्पियर ही तो 5 ओम में से फ्लो होगा। That means in second case directly you will get that current at 5 ohm resistance that is equal to 2 ampere, और ये करंट क्या था आपका 2 ohm रेजिस्टेंस पे था। यस, ये दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए। What is the third point? Means third concept. Third concept क्या है? We have to find the value of current through this 10 ohm resistance. Can you tell me how we will get the current value from this 10 ohm resistance? कैसे मिलेगा, कोई बता सकता है क्या? Sir, Ohm's law. Yeah, very good. Ohm's law से मिलेगा, बट ओम्स लॉ का कंडीशन क्या होता है, दैट वी हैव टू नो दैट इट शुड बी अ क्लोज पाथ। अगर आपको करंट फाइंड करना है किसी पे भी तो वो क्लोज पाथ होना चाहिए, बट इन दिस केस दीज 2 टर्मिनल्स आर ओपन फ्रॉम देयर ओन। ये सर्किट आपस में कहीं कनेक्ट नहीं है, सो इफ इट इज नॉट कनेक्टेड लाइक दिस, अगर ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, दैट मीन्स I always should be equal to 0. Means ये दोनों टर्मिनल कैसे हैं, ओपन टर्मिनल्स हैं। If these 2 terminals are open terminals, that means current cannot flow from this 10 ohm resistance. So either you are having resistance value or not on this particular circuit, there is no any useless. Got it? ये 10 ohm यूजलेस है, क्यों? क्योंकि ये क्लोज पाथ नहीं बना। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या आपका? Yes, sir. These 2 points are not close to each other. I should get resistance, यानी यहां पर पॉइंट्स पे करंट का वैल्यू मिल गया, पॉइंट ये शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब सारा का सारा करंट यहां से फ्लो होगा, यहां से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। Current will flow through this 5 ohm resistance. It is not connected to each other. That means the current I will equal to 0 through this 10 ohm resistance. ये तीनों पॉइंट क्लियर। Now what you have to do, you have to apply the KVL equations. Students, हम इससे क्या मतलब है, 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा, बट वी आर नॉट रिक्वायर्ड ना, हमें कहां से कहां तक देखना है, ए से बी के बीच में देखना है ना। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कैसे हम लोग इस बात को फॉलो करेंगे पे और फिर इस डायरेक्शन पे, तो बी पे पहुंच जाएंगे ना। वी विल स्टार्ट फ्रॉम ए, वी विल रीच टू बी फ्रॉम 2 8 वोल्ट 10 ohm resistance 5 ohm resistance, और पहुंच गए। So definitely current will flow through this, is not required for us, हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं ए से बी, क्योंकि हमें फाइंड करना डिफरेंस ए टू बी। Yes, sir. Is it clear? Yeah. Okay. Listen, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और है, पूछा कि सर not connected ना, A and B is also not connected, so it should be open circuit. So why we are calculating
हो सकता है एंड इट इज अ जेन्युइन डाउट, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, बट वी वांट टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, हाउ वी कैन अप्लाई द केवीएल इक्वेशन. सो लिसन डियर स्टूडेंट्स, एवरी सर्किट इज ग्राउंडेड. जो भी सर्किट होता है ना वो हमेशा ग्राउंडेड होता है. इसका मतलब क्या हुआ ग्राउंडेड का मतलब? देखिएगा that if I rebuild this circuit diagram, how it will look like. Suppose here this point is A, point is B, for example. A point and this is a B point. 2 ohm resistance मिलेगा, या दिस इज 2 ohm. वोल्टेज सोर्स मिलेगा, दैट इज माइनस एंड प्लस 8 वोल्ट. But I am not writing plus and minus because current is 0 in this particular resistance. Flow ही नहीं हो रहा, so I will put voltage equal to 0 in this particular case. 5 ohm resistance and this and where current is flowing 2 ampere. और हमें B point मिल जाए. What we want to find difference between A and B. So if I suppose here we are having AB voltage. देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, A और B के बीच में डिफरेंस अगर हमें फाइंड करना है, सो ऑलवेज हम उसको एक वोल्टेज सोर्स की तरह कंसीडर करेंगे, वोल्टेज सोर्स की तरह कंसीडर कर लेंगे. एंड इन दिस पर्टिकुलर केस A का जो टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव आएगा और B का टर्मिनल आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव. Why we are doing like a terminal positive और एक negative, and how you know that A का वैल्यू B से ज्यादा होगा, ये कैसे पता चला आपको? We don't know ना, अभी सर्किट हमने सॉल्व नहीं किया. We are not solve the circuit. How I can decide that A value is greater than B? But I'm just assuming, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा कि A B का डिफरेंस फाइंड करो. करने के लिए मैंने क्या किया, A को पॉजिटिव सपोज कर लिया और B, A को बड़ा वैल्यू और B को छोटा वैल्यू, ऐसा सपोज कर. ओके, दिस इज वन मेथड. नाउ यू कैन अप्लाई द KVL. करके बता देता हूं, यू विल गेट द सेम रिजल्ट. किसी को डाउट है क्या? टेल मी. करना था तो मैंने A पॉइंट लिया, करना था तो मैंने यहां पर B पॉइंट ले लिया. इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना था तो मैंने VAB लिख दिया. दैट्स इट. Yes, sir. Yes, sir. Is it audible? Yes, sir. Audible or not? Audible, Yes, sir. sir. Audible, sir. किसी को डाउट है क्या? डाउट है? No, sir, no. ओके ओके, नो प्रॉब्लम. अगर डाउट, देखिए लिसन, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं. अब तक ए पॉइंट से स्टार्ट किया मैंने, ये पॉइंट है. इस पॉइंट पे फिर 8 वोल्ट मिला, फिर ये रेजिस्टेंस मिला, ये 5 ओम मिला और फिर बी पॉइंट मिला. ओके, नाउ अब क्या कि हमें AB पे KVL अप्लाई करने की बात है. तो KVL कैसे अप्लाई कर सकते हैं? KVL अप्लाई करने के लिए क्लोज पाथ होना चाहिए. सो बेसिकली इट इज अ क्लोज पाथ. ये क्लोज पाथ ही है. क्यों एक क्लोज पाथ है? क्योंकि ये हमेशा ग्राउंडेड होता है. नहीं मालूम, सो क्या करेंगे, एक टर्मिनल को आप पॉजिटिव सपोज करो, टर्मिनल को नेगेटिव सपोज करो. तो VAB, यही डिफरेंस हमें फाइंड आउट. अब तो आपके पास क्लोज पाथ है. Now apply the KVL equation. So tell me who will tell me the KVL equation for this? क्या आएगा? Tell me. इसमें KVL equation बताइए मुझे क्या आएगा?
Sir, minus I1. Yeah, very good. Minus. Hello. Minus I1 2. Yes, yes, yes. I'm Is, listening. Yeah, I1 means plus value is there. I1 8 for volt. I1, that is value is 2.5. 2.5. 8 volt So here, okay. If you plus are 8 volt supposing I1 and I2, I can write I1 equal to I1 ampere and I2 equal to 2 ampere. No problem. So I will write like you what you are saying. Okay. So here minus R1. Here I am writing that R1 equal to 2 ohm. Minus or plus plus? 8 volt plus 8 volt. Very good. Plus 8. Then Then minus minus 5 5 I2. Yes, sir. plus VAB. Yes, sir. Why I am writing VAB? Because I so I'm just denoting with the VAB. No problem. ये मैंने सिर्फ denote किया है. Put I1 value minus 5 I2 value, that is 2 equal to 0. So you can get that minus 5 plus 8 minus 10 plus VAB equal to 0. So आप simplify कर सकते हैं. I think इसमें कोई doubt नहीं है. So VAB 7. So you will get VAB equal to 7. I'm supposing this is a negative and this is a positive. ये negative हो, ये positive है, क्या जाएगा? That you will get VAB equal to minus 7 volt. That's it. नहीं. But minus 7. Students. Yes, sir. माइनस क्यों? Yes, sir. Yes, sir. मैंने टर्मिनल चेंज किया. Whenever I change the terminal, you will get negative. But how you will solve in university? ये मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए किया कि ये ओपन नहीं है, क्लोज्ड है. बट एग्जाम में कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? लिसन. So I am erasing this and I am explaining of this type of. I1 लिखेंगे, I2 लिखेंगे, डायरेक्शन जरूर दिखाएंगे. This direction clockwise and this I2 direction is anti-clockwise. अगर ये करंट नीचे की ओर जा रहा है, that means it is going downwards. So you have to write plus and minus. Downwards, so you have to write positive and minus. In this case, just you have to write I equal to 0. And you have to apply KVL. KVL at five minutes. Apply the KVL from A to B. Now A to B में मालूम चल गया क्लोज पाथ है, तो सीधा हमें किस पे फोकस करना है? इस पाथ पे फोकस करना है. ये आपको अप्लाई. उससे पहले आपको क्या करना है? I1 और I2 का वैल्यू फाइंड करना है. सो आप नीचे लिखेंगे फॉर ऑफ I1. For calculation of I1, you have to apply the KVL on this. Whenever you will apply, that is 2.5 ampere. इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा. कैलकुलेशन ऑफ I2
क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ रहा है आपका, सो दैट I2 will equal to, now you got the value of current over here and here also, KPL at A to B अप्लाई करने के लिए बाद वाला साइन लेते हैं, सो बाद माइनस करंट का वैल्यू क्या है 2.5 क्या आएगा, साइन क्या है इसमें प्लस, वोल्टेज क्या है 8, आई एम नॉट कंसिस्टेंस पे देखिए बाद वाला साइन क्या है माइनस, करंट कितना है 2.5, ओके, इसको सिंप्लीफाई करें, whenever you will simplify you will get -5 plus 8 minus 10. अब एक डाउट हो सकता है स्टूडेंट्स, तो इसको जीरो क्यों पुट नहीं किया, बिकॉज वी हैव टू फाइंड डिफरेंस, डिफरेंस मींस दैट आई विल राइट द डिफरेंस फ्रॉम A to B, that VAB equal to, rather than writing a zero you have to write VAB equal to this. So this is your answer. किसी को भी डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? No, sir. Hello. Or not, tell me first. I think is it audible? Hello, Okay, sir. So do you have doubt? किसी को भी डाउट है क्या? Hello, sir. Do you have any doubt? Nitya? हेलो No, सर sir. सर वो Yeah. 10 ओम Tell me. 10 ओम है ना, तो वो ऐड क्यों नहीं किया हमने? 10 ओम फिगर में दिया है ना। हाँ 10 ओम पे करंट नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा है ऐसा पूछ रहे हो क्या? हाँ हाँ सर। रेजिस्टेंस से बट करंट नहीं है ना, या 10 ओम रेजिस्टेंस से बट करंट जीरो होगा, क्यों करंट जीरो होगा, बिकॉज ये दो टर्मिनल कहीं पर भी कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड दैट मींस करंट कैन नॉट बी फ्लो। देखो अगर ये सर्किट मैंने ऐसे लगा तो इसमें एक क्लोज पाथ बन जाता है टू फ्लो, अगर ये यहाँ से वायर कनेक्ट कर दिया जाएगा तो करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना, जो वैल्यू होगा 8/10, अगर मैं फिर तब इसको देखना होगा ना, तो यहाँ करंट क्या हो जाएगा 8/10, तो ये केवीएल इक्वेशन चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा देखिएगा, VAB इक्वल टू -2.5 into 2 plus 8, फिर क्या हो जाएगा -0.8 into 10 minus Yes. 5 into 0. कंसीडर करना पड़ेगा, means if it is connected somewhere else, so you have to consider this 10 ohm resistance. Current is not flowing in this 10 ohm resistance. Okay. Hello, Yes. sir. Sir. Just tell me. हेलो सर, इधर पे आपने -7 डाला वो मुझे समझा, बट सर लास्ट जो आपने एक्सप्लेन किया उसमें माइनस कैसे आया 7 में, वो मुझे नहीं समझा क्या नहीं समझ नहीं? सर। अभी इसके पहले जो आपने Repeat करो, एक्सप्लेन किया it is था not उस audible to you, Puni. हेलो सर, इसके पहले जो आपने Yes, yes, एक्सप्लेन yes, किया I'm था listening, सम, yes. तो उसमें -7 कैसे आया, सिर्फ वो आप बताएंगे? हाँ देखो मैंने उसमें क्या था, सपोज मैंने ऐसे लिख के दिया था आपको पहले, पॉजिटिव ये निगेटिव, यहाँ पर 2 ओम दिया था, ये 5 यहाँ सॉरी 10
दिया था, ये 5 ओम दिया था, या 8। हम्म। क्या किए मैंने, चेंजेस किया यहाँ पर, और क्या मैंने बनाया, इस सर्किट पे मैंने किया, इसको निगेटिव किया और इसको पॉजिटिव किया। दिस इज निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, एंड दिस इज VAB। KVL अप्लाई करके देखो, करेंगे तो इसमें बाद वाला साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर क्या होगा, बाद वाला साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, इंटू 2.5 प्लस 8 तो कंसीडर नहीं करेंगे, क्या -5 इंटू करंट क्या 2 इक्वल टू 0। So you will get VAB equal to -7। ओके। Is it clear to you or not? यस सर। यस सर। हेलो सर। सर सर अगर सिर्फ प्लस को, सर अगर प्लस को ऊपर लेते हैं तो वोल्टेज पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। सर अगर प्लस को ऊपर लेते हैं हम लोग, सर हम लोग अगर टर्मिनल चेंज करते हैं, प्लस को ऊपर लेते तो प्लस में आता ना आंसर। मैंने करेक्ट किया था, टर्मिनल डाउट है सर अगर प्लस ऊपर लेते सर टर्मिनल का, तो VAB 7 वोल्ट आता ना आंसर। सर VAB 7 वोल्ट आता ना सर। क्या प्लस ऊपर होगा? यस टेल मी, क्या पूछना है? अगर प्लस ऊपर लेता अगर मैं, और माइनस नीचे, हाँ तो 7 आता, +7 आता। माइनस अगर नीचे ले, प्लस ऊपर लेंगे, माइनस नीचे लेंगे तो प्लस का 7 आएगा। यस सर। नीचे लेंगे तो -7 आएगा। हाँ ठीक है सर। मैंने इसीलिए आपको बताया कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करना। देखिए आई टोल्ड यू बोथ मेथड्स। इन एग्जाम यू हैव टू सॉल्व दिस मेथड, जो मैंने बाद में बताया ना, दिस यू हैव टू सॉल्व इन एग्जाम, आया ना लास्ट में। सो दैट मेथड यू हैव टू, ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था, दैट्स व्हाई एक्सप्लेन इन बोथ। ये जो मेथड मैंने एक्सप्लेन किया, दैट यू हैव टू अप्लाई। सिर्फ मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया कि हाउ A and B आर क्लोज टू ईच अदर, कैसे क्लोज है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लास्ट मेथड एक्सप्लेन किया था, मेथड फॉर एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर, बोथ मेथड please take a screenshot. I want to give us some questions to you students. Yes, sir. Yes, sir. Students, this is your homework. Please note it down. Once again, take a screenshot for this. Yeah, ये दिख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3. Yes, sir. Students, question 3. Yes, sir. दिख रहा है। Yes, sir. Take a screenshot and solve your own self. This is your homework. Screenshot ले लीजिए. Yes, take a screenshot and try to solve your own self. We'll discuss in next lecture tomorrow. Okay? Tomorrow lecture will be at 2 to 3 p.m. Okay, sir. Okay? So I hope you mark your attendance.